السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ بندہ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیدائشی ہندو ہوں، لیکن میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، وید بھی پڑھی ہے اور قرآن مجید بھی پڑھی ہے، اور میں جو ہے وہ کرسچن جیسی عبادت کرتے ہیں میں وہ بھی کرتا ہوں، مسلمان جیسی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہوں، اور جتنے اور مذہب کے جتنے بھی لوگ عیسائی جو عبادت کرتے ہیں میں وہ بھی کرتا ہوں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے دوستو کہ بھگوان ایک ہے، لیکن لوگوں نے جو ہے اپنی کنسنٹریشن کے لیے ان کی امیج بنائی ہے، تو اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ دوستو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سنتے ہیں کہ اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ تھینک یو، آپ نے موقع دیا۔ ابھی میں نے سنا ہے کہ ہندوازم میں پرتیما کے ذریعے پوجا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا بھی ہے، اور ہر دھرم کے اس میں جا کر میں نے ان کے ذریعے سے پوجا بھی کیا ہے، سکھزم، بدھزم، ہندوازم اور کرسچینٹی میں بھی دیکھتا ہوں۔ سبھی میں پرماتما، کوئی بولتا ہے پرماتما ایک ہے، کوئی بولتا ہے پرمیشور، کوئی بولتا ہے اللہ، یہ سب ناموں کے ہے، لیکن اگر اپنے دل سے اگر دنیا میں دیکھے سمجھے تو پرمیشور ایک ہی ہے۔ ابھی پرتیما کے ذریعے ہندوازم میں ایک ہی پرمیشور کو دیکھا جاتا ہے، وہ پرتیما کو پرمیشور نہیں مانتے، اس کے ذریعے وہ پرمیشور پیرامے ایٹمک فورس کا وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ارداس کرتے ہیں۔ کوئی پوجا بولتا ہے، ارداس بولتا ہے، دیر ڈفرنٹ تھنگس فار ڈفرنٹ مائنڈ۔ تو میں تو سمجھو بائی برتھ ہندو ہوں، لیکن مجھے روچی پرمیشور، اللہ، جیزس کرائسٹ، یہ جو نام ہے ایک بڑی مہان شکتی کے ذریعے میں وشواس رکھتا ہوں۔ ان سب کپڑوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، کچھ نہیں۔ میں پرمیشور کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، جیزس کو مانتا ہوں، بدھسٹ کو مانتا ہوں، دا ہول تھنگ۔ میرا دھرم کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا دھرم کیا ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بائی برتھ آئی ایم اے ہندو، میں پیدائشی ہندو ہوں، لیکن میں نے کرسچینٹی پڑھی، بدھزم پڑھا، اور کہا کہ میں کرسچن میں جا کے پریئر کیا ہوں اور بدھسٹ میں جا کے کیا ہوں۔ میرے سننے میں یہ نہ ہے کہ اسلام میں کیا ہوں۔ نہیں، میں آپ نے کہا نہیں، بولا میری جیب میں بھی ہے، جیب میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، دل میں بھی اسلام، دل میں بھی ہے۔ بھائی صاحب ہر مذہب کے وہاں گئے، وہ پوچھنا چاہتے کہ میرا دھرم کیا ہے، میرا دھرم کیا ہے۔ اس کے پہلے انہوں نے دو چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتیما کے ذریعے پوچھتے ہیں، اور کہا کہ کئی نام ہیں، ایشور، پرماتما، گاڈ، اللہ۔ پھر کہا میرا دھرم کیا ہے، تین بھاگے سوال کے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتیما کے ذریعے عبادت کرنا کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے، آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ شیواجی۔ شیواجی، 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 پورا نام کیا ہے؟ شیواجی سکھدیو وارولے۔ شیواجی وارولے، ہاں، شیواجی وارولے۔ تو ہمیں اس طریقے سے عبادت جس طریقے سے دھارمک کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ سے عبادت کرو، سجدہ کرو۔ ہندوازم میں بھی لکھا ہے دنڈ نمسکار، پتہ ہے دنڈ نمسکار، اس میں کہا ہے ششٹانگ، ششٹانگ پتہ ہے؟ ششٹانگ مطلب 8 انگ آپ کے حصے کے زمین پہ لگنا چاہیے۔ 8 انگ، 8 حصے آپ کے انگ کے زمین پہ لگنا چاہیے۔ 8 انگ، ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، 8 ہو گئے نا؟ سب میری تو ایک ہی ٹانگ ہے، ایک سورگ میں گئی ہے، تو میں ساشٹانگ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، ویری گڈ، ویری گڈ۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے، عام طور پہ اگر سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101، 102، 103 میں اگر آپ تکلیف میں اگر کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، آپ گھوڑے پہ بھی پڑھ سکتے، اونٹ پہ بھی پڑھ سکتے، سمجھے نا؟ مثال کے طور پہ اس کا مطلب آپ کھڑے نہیں سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے۔ تو 8 نہیں 7 ہے نا، 7 نہیں تو 6 بھی چلے گا، جتنے اتنے نماز قبول ہو۔ لیکن 8 ہے اور 8 ہو کے بولیں گے میں 7 کروں گا تو غلط ہے۔ 8 ہے تو 8 کرنا چاہیے، بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے کرو، آپ سمجھے نا؟ اگر کھڑے سکتے تو کھڑے رہنا آپ کے لیے ضروری ہے، میں کھڑے سکتے پھر بولوں گا بیٹھ کے پڑھو تو صحیح بات نہیں۔ تو اس طریقے سے عبادت کرنا جس طریقے سے لکھا ہے قرآن میں یا وید میں۔ آپ تحقیق کریں گے
तो कुरान में लिखेला है सुजूद के बारे में, सिजदा करना। हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 क्या इब्राहिम फेल ऑन फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, ज़मीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की। फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल ज़मीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में टुक अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड इन गार्डन ऑफ गेत्सेमनी फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। गार्डन ऑफ गेत्सेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है। आप समझ रहे ना। आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 कुलिदुल्लाह अब्दुर्रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं। अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरह नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूँ फादर हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता। आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले, आपका आखिरी सवाल कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म। शिवाजी वारुले का धर्म ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म। और वो धर्म सबसे बेहतरीन, उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म ईजाद करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेज़ी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूँगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू।
जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों कि जैसे कि इस बंदे ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, मैंने वेद भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है और कुरान मजीद भी पढ़ी है, और मैं जो है हर किताब की जो है वो उसको पढ़ता हूँ, वो उस पर अमल करता हूँ। तो मैं किस मज़हब से मैं ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, मेरा मज़हब क्या है। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। अगर आप जो है वो वेद की भी पूजा करते हो, वेद की जितनी बातें वो भी मानते हो, बाइबल भी मानते हो, कुरान मजीद भी मानते हो, तो आपको कोई मज़हब ही नहीं है कि आप किस मज़हब में हैं, किस मज़हब में नहीं हैं। तो दोस्तों हर एक मज़हब में जो है एक हक़ और सच की किताब होती है, जैसे कि कुरान मजीद ले लें, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम हुकूक़ है कि एक इस बंदे के किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अगर अभी इस जैसे कि इस बंदे ने कहा कि मैं बाइबल पर भी अमल करता हूँ, वेद पर भी अमल करता हूँ, जैसे कि बाइबल में है, अगर बाइबल में है कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, तो आप भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या खुदा मानते हैं। कुरान मजीद में है दोस्तों कि अल्लाह ताला एक है, उससे कोई शरीक नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनके वेद से भी कुछ हवाले उठाए हैं, वो इस बंदे को बताया है कि आपकी किताब में है कि अल्लाह ताला की कोई पिक्चर नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो इसने बताई है दोस्तों कि बहुत से ऐसे लेकिन कोई उनकी मूर्ति को भगवान कहता है, कोई अलग अलग नाम लेते हैं दोस्तों के हमारे, जैसे कि हम अपने अल्लाह को जो है अल्लाह कहते हैं, इस तरह तमाम जितने भी हिंदू हैं वो अपने बुतों को अलग अलग नाम देते हैं। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमें सिर्फ एक ही अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। अगर आप लोग देखो एक अल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है दोस्तों कि इसमें जो है कोई और मिक्सिंग नहीं हुई है। अगर हम गॉड को देखें, अगर गॉड के साथ एस लग गया तो वो गॉडिस हो गया है। इस तरह खुदाओं इस तरह इसमें जो है फिर मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही अल्लाह है जिसके हमारे पास कोई मिक्सिंग नहीं है, वो बेहतरीन नाम है एक अल्लाह के लिए। लेकिन जितने भी हिंदू है दोस्तों वो इबादत करते हैं, अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की इबादत करते हो, और फिर इनकी किताबों में ये हवाले भी है दोस्तों के अल्लाह ताला की कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, और ये लोग जो है फिर अलग अलग तरीके से अपनी इबादत करते हैं। पानी की भी इबादत करते हैं, आग की भी इबादत करते हैं, जितने भी इनके एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं उनकी इबादत करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे बेहतरीन जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बंदे को बताया है, उम्मीद करता हूँ कि जवाब आपको भी अच्छा लगा होगा। कि जैसे कि अगर आप वेद की भी जो है वेद को भी मानते हैं, वो फिर इबादत करते हैं, बाइबल पर भी अमल करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, कुरान मजीद की भी जो है वो बात मानते हैं, तो आप किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हुए। लोगों का एक नज़रिया होता है, एक रास्ता होता है कि कौन सा रास्ता सही है कि हम उस रास्ते पर चलें। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन जवाब था। तो दोस्तों अगर कोई भी आपके ज़हन में कोई भी ऐसे कमेंट हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वस्सलाम।